A very good morning to all of you. Today we will discuss about the next one concept of the chapter number 12, the foreign exchange rate. In this chapter up to the previous topic we have studied about the foreign exchange rate, the two different forms of the foreign exchange rate. For the first one was the flexible exchange rate, in which we have discussed about the concept that how the equilibrium rate of exchange can be determined in the international market. Then we were discussing about the impact of changes in the currency, in which we have studied already about the impact of increase or decrease in the demand of foreign currency. Now we will discuss about the third one situation, that if there will be any changes in the supply, then how it will affect on the foreign exchange rate. So the first one situation, in case of the supply, impact of increase in supply of foreign currency, कि अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो वो हमारे इक्विलिब्रियम रेट पे क्या इम्पैक्ट करेगी. यूजुअली वी कैन से एज लाइक इन द केस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम कहें किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी उसकी डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस सप्लाई की स्टेट आ जाती है मार्केट के अंदर, इट विल लीड टू द रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी. तो अगर फॉरेन करेंसी के प्राइसेस, यहाँ पर फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और फॉरेन करेंसी के प्राइसेस क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे. इट मीन्स कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द सिचुएशन ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. So here we can discuss about the impact of increase in supply of foreign currency. See this very carefully. Suppose this is the original demand curve and this is the original supply curve. And suppose the supply curve has been increased from S to S1. Okay. So what will happen? At the level of D and S, the prices and quantity was P and Q. Sorry, rate and quantity. The prices of the foreign currency was R and Q was the original quantity of the foreign currency demanded. अगर supply ज़्यादा हो गई, what will happen? It will lead to the reduction in the rates. तो इससे क्या होगा, एक नया equilibrium आएगा जिसमें rates को क्या कर देगा, down, and the supply quantity supplied will be the excess supplied. So it will lead to the appreciation of our Indian currency. After that, the fourth one is there, that is the situation of the decrease in the supply of the foreign currency. अब without any changes, अगर international market के अंदर जो डिमांड है, सॉरी, जो सप्लाई है, अगर वो इंटरनेशनल करेंसी की डिक्रीज हो जाती है, then how it will impact on the rate as well as on the supply. We will discuss about it. Simply suppose D is the original demand curve and S is the original supply curve. This is the equilibrium where the rate is there and Q is there. This is the prices of the currency, foreign currency, and this is the quantity supplied. After that, अगर सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, इट विल गोज अपवर्ड लाइक दिस, a new rate will be determined which is higher than the previous rate. अब रेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, it will lead to the reduction in the quantity demanded of the particular currency. तो यहाँ पर इससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम भी हो जाएगी, डेप्रिशिएट भी हो जाएगी, नो डाउट, अगर उसकी सप्लाई को जो है वो कम कर दिया जाता है. So with the help of these kinds of transactions, the changes in the exchange rate can taken place in the overall economy. कभी हमारा डॉलर की टर्म में प्राइस बढ़ जाता है, कम हो जाता है. So all these things we can call that all these things are happened with the help of these kinds of situations. So we can say that in the case of the flexible exchange rate system,
these kinds of the transactions can take place. तो एक्सचेंज रेट एक्चुअल में कब कब बढ़ता है, जब फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है या सप्लाई रिड्यूस हो जाती है. इट मींस इन शॉर्ट वी कैन से when there is a situation of the excess demand, it will lead to the rises in the prices of the exchange rate. On the opposite side, if the situation of the excess supply will be there, it will lead to the reduction in the demand, reduction in the exchange rate of that particular foreign currency. अगर हमारा रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, इट विल लीड टू द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. अगर रेट कम हो जाता है, इट विल लीड टू द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एप्रिसिएशन एंड द डेप्रिसिएशन? तो एप्रिसिएशन में क्या होता है, फॉल हो जाता है एक्सचेंज रेट, और डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है. एप्रिसिएशन में हमें कम रुपी चाहिए इन ऑर्डर टू परचेज $1. डेप्रिसिएशन में हमें ज्यादा रुपी चाहिए इन ऑर्डर टू परचेज $1. व्हाट आर द रीजंस? एप्रिसिएशन कब होता है, जब सप्लाई बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए. डेप्रिसिएशन कब होता है, जब डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, पहले $60 का था, फिर 50 का हो गया. फॉर एग्जाम्पल हेयर, पहले $60 का था तो अब 70 का हो गया. सो दीज आर द सिचुएशन ऑफ द एप्रिसिएशन एंड द depreciation of the foreign currency. Okay, next one step is there, that is the our second one, system of exchange rate determination. We have studied about now the concept of the flexible exchange rate system in a detail. Now we will discuss about the second one concept of the exchange rate, which is the fixed exchange rate. As per the name indication, fixed क्या होगा, जो फिक्स कर दिया जाएगा. ओके, सो एक्सचेंज रेट सिंपली, the fixed exchange rate refers to that system of exchange rate in which the rate of exchange of the foreign currency is mainly fixed by the government, is mainly determined by the government. उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेट कर देती है, फिक्स कर देती है एक पर्टिकुलर रेट पे. Like exchange rate is said to be fixed when it is set and maintained by the government at a particular level. और गवर्नमेंट जो है वो उसे सेट कर देती है एज पर देयर लेवल सिस्टम. वो उसको इक्विलिब्रियम रेट से अपर या लोअर कैसे भी सेट कर सकती है, अबव द लेवल ऑफ द मार्केट सप्लाई डिमांड एंड फोर्स सप्लाई फोर्सेस, और बिलो द level of the market supply for market forces of supply and demand. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर गवर्नमेंट इसको दोनों स्टेट में अगर वो डिसाइड करती है तो क्या होगा, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट एंड व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट. क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें डिसाइड करती है. सी दिस, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सचेंज रेट हायर सेट किया है, तो सी दिस, दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, this is the rate and this is the quantity. Okay, so suppose if the government has decided the rate up to this level, higher than the actual rate, then there is a situation of which thing, there is a situation of excess supply. क्यों एक्सेस सप्लाई की स्टेट क्यों होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इक्विलिब्रियम रेट है उससे अपना ज्यादा रेट को डिटरमाइन किया एंड दिस इज फिक्स्ड. तो यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस आर नॉट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ द रोल हेयर. तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेनी टाइम इट हैपन कि डेलिबरेटली जानबूझकर गवर्नमेंट अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है. दिस सिचुएशन इज नोन एज द डीवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन मींस कि जब इक्विलिब्रियम रेट जो है वो जानबूझकर ज्यादा रखा जाता है, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर कम कर दिया जाता है. वहीं जहां हमें पहले 50 रुपीज $1 को परचेज करने के लिए देने थे, अब गवर्नमेंट ने उसे कितना फिक्स किया, 60 रुपीज. Why these kinds of situations are mainly adopted by the government? Generally, these things are adopted by the government in order to increase the exports. कि हमारी कंट्री की करेंसी अगर सस्ती हो जाती है तो सिंपली क्या होगा,
बाहर की कंट्री की करेंसी जल्दी अट्रैक्ट होकर क्या करेंगी, हमारी कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन्स करेंगी. सो देयर आर द टू टर्म्स, the devaluation and the depreciation. Both of these terms are different. Devaluation क्या होता है, सिंपली कि जब वैल्यू जो है डोमेस्टिक कंट्री की वो गवर्नमेंट जानबूझकर कम करती है बाय रेजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज, जानबूझकर उसको कम कर देती है अपनी मर्जी से. बट डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी जस्ट अराइज when the value of the domestic currency reduce in the international money market due to the market forces. कि जो हमने फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में किया, अगर उसमें ऐसा कुछ होता है, दैट इज नोन एज द डेप्रिसिएशन, कि वो अपने आप हो रहा है, अपने आप मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू में चेंजेस आ गए, दैट इज नोन एज द डेप्रिसिएशन. बट अगर हमारी गवर्नमेंट विलिंग होकर डेलिबरेटली इस चीज को करती है कि वो हमारी कंट्री की करेंसी को रिड्यूस कर देती है, दैट इज नोन एज द devaluation. As like similar, the opposite situation can arise or can happen. द मेन थिंग कि अगर डिवेल्यूएशन अराइज होता है तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, डिवेल्यूएशन से अल्टीमेटली नो डाउट फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, कि सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा. तो डिवेल्यूएशन सिंपली क्या होगा, नो डाउट इट विल बी रिमूव्ड. बट जनरली इट हैपेंड कि गवर्नमेंट क्या करती है इस काइंड की सिचुएशन के अंदर डिवेल्यूएशन में, कि अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा सप्लाई होती है उसको अल्टीमेटली क्या करती है, खुद परचेज कर लेती है, सो दैट द फॉरेन करेंसी, द रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कैन बी मेंटेन्ड. तो जनरली ये एक प्रोसेस होता है आरबीआई का, जिसमें वो फ्लोटिंग को मैनेज करता है, कि सपोज अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं या ज़्यादा कम हो रहे हैं तो वो एक्सेस और शॉर्टेज के थ्रू एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. On the opposite side, what will happen when the exchange rate is set as the lower than the equilibrium exchange rate? अब ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को क्या करे, लोअर सेट कर दे. अगर वो हायर सेट कर सकती है तो वो लोअर भी सेट कर सकती है. सो इन दिस काइंड ऑफ स्टेट व्हाट विल हैपन, सपोज दिस इज द डिमांड कर, दिस इज द सप्लाई कर, राइट, दिस इज द प्राइजेस, these are the prices. Then government what the which kind of the role will be played by the government, गवर्नमेंट क्या करेगी, कम रेट डिटरमाइन कर देगी. अब कम रेट डिटरमाइन करेगी तो वहां क्या होगा, सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी, राइट. सो दिस काइंड ऑफ स्टेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक सम स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिवैल्यूएशन की बजाय कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, रीवैल्यूएशन. सो रीवैल्यूएशन is mainly done or adopted by the government in order to promote the value of the domestic currency. अगर लग रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, इंपोर्ट्स बढ़ाने हैं, या उसको लग रहा है कि ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है, हमारी वैल्यू की इतनी, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू इतनी सेटअप नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे डाउन कर देती है, रिवैल्यूएट कर देती है. So as like similar, the devaluation and the depreciation is different from each other. The same thing, the revaluation and the appreciation is also different from each other. Appreciation कब होगा, कि जब हमारे डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, किसकी वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई, कि गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रही उसमें. एंड ऑन द ऑपोजिट साइड रिवैल्यूएशन कैसे होगा, कि जब जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है उसकी वैल्यू जो है वो जानबूझकर गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, कैसे, बाय इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट. सो द मार्केट फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड जो है उसमें क्या है, कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं. इन द केस ऑफ द एप्रिसिएशन गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल, बट इन केस ऑफ द रिवैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस आर नॉट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ द रोल. अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या आएंगी, नो डाउट रिवैल्यूएशन होगा तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई,
जहाँ हमें डॉलर को खरीदने में पहले 50 रुपए देने थे, अब हमें 40 रुपए देने हैं, तो उससे डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। अब इस एक्सेस डिमांड को कौन पूरा करेगा? फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में से आरबीआई क्या करेगा? अपने रिजर्व्स को यूज करेगा। अगर ऐसा हो कि उसके पास एक्सेस सप्लाई है देन, और सप्लाई जो है जनरली अगर ऐसा हो कि वो फॉरेक्स से नहीं आई, तो वहाँ पर जो है एक ब्लैक मार्केटिंग भी अराइज हो सकती है कि विद द हेल्प ऑफ द सेल परचेज ऑफ डॉलर जनरली क्या करते हैं कि जो बायर है वो डीलर्स बीच में एक प्रीमियम अर्न करते हैं, और वो क्या करते हैं कि पहले वो परचेज कर लेते हैं डॉलर्स को, और फिर गवर्नमेंट का जो प्राइस फिक्स हुआ है उससे उस हाई रेट पे उसको सेल ऑफ करते हैं। सो इट कैन ऑल्सो हैपन, right? So generally these kinds of systems are there. इनिशियली जब हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ था एक्सचेंज रेट का, सो वहां पर हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक सिस्टम आता था विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो एक पुराना तरीका है ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम में देखो मेनली क्या होता था एट द टाइम ऑफ 1920 से पहले, कि अगर किसी भी कंट्री की करेंसी को नॉमिनेट किया जाता था, तो रेदर देन टेकिंग इन द अनलाइक इन द केस ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम कि जब यूएस डॉलर को सभी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में नॉमिनेट किया जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड को एक कॉमन यूनिट लेके चला जाता था। The gold is mainly the value of every country currency was defined in terms of the gold, कि हर एक कंट्री की वैल्यू जो होती करेंसी की उसको गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन करना पड़ता था हर एक कंट्री को। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता था, द वैल्यू ऑफ द वन कंट्री करेंसी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द अनदर कंट्री करेंसी विद द हेल्प ऑफ द गोल्ड, कि जो गोल्ड के टर्म्स में जो उनकी वैल्यूज थी उसके बाद उनको आपस में एक दूसरी कंट्री की करेंसी की टर्म्स के अंदर डिफाइन किया जा सकता था। Like we can take an example of this also. See very carefully. Suppose यहाँ पर क्या है कि एक यूके के में पाउंड स्टर्लिंग यूज होते हैं एज ए करेंसी। वो किसके बराबर है? 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के। यूएस किसके बराबर है? 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के। तो 1 यूके पाउंड स्टर्लिंग इज इक्वल टू 2 US डॉलर। तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया उनके बीच में? 1:2 का रेशो, कि 2 US डॉलर के बदले में 1 यूके का पाउंड स्टर्लिंग लिया जा सकता है। तो इसको हम इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑल्सो, जिसमें मेनली करेंसी की वैल्यू को कैसे डिसाइड किया जाता था? विद द हेल्प ऑफ द गोल्ड ओनली। उसके बाद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कुछ चेंजेस किए गए, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा यूसेज में आ रहा था और गोल्ड ही एक सिंगल सिस्टम आ गया था, और कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते थे कि एक बार भी फिक्स कर दिया तो नो एनी काइंड ऑफ द चेंजेस कुड बी अडॉप्टेड। तो फिर थोड़े टाइम बाद क्या किया गया? एक नया सिस्टम अराइज किया गया विच वॉज नोन एज द ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इट इज नोन एज। तो इसमें क्या था कि नो डाउट ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर कुछ एडजस्टमेंट अलाउ की गई, कि नो डाउट इट वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बट सम ऑफ द एडजस्टमेंट वाज अलाउड बाय द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था? देखो सबसे पहले कि डॉलर मेन थिंग गोल्ड को रिड्यूस किया गया, गोल्ड की यूसेज को कम किया गया। तो जो डिफरेंट करेंसीज थी वो मेनली उनको किससे रिलेट कर दिया गया? एक कंट्री की करेंसी के से रिलेट कर दिया गया, जो कि क्या थी? यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर को क्या किया गया? एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू को असाइन कर दिया गया, कि सबसे पहले यूएस डॉलर को क्या किया गया? एक पर्टिकुलर गोल्ड के टर्म में डिफाइन कर दिया गया, और फिर सारी की सारी कंट्री की करेंसीज को किससे रिलेट कर दिया गया? यूएस डॉलर से। तो अब अल्टीमेटली एक कंट्री की करेंसी जो थी यूएस डॉलर की टर्म के अंदर, वो गोल्ड की टर्म के अकॉर्डिंग उसमें डिफाइन हो जाती थी। नो डाउट गोल्ड को यूज किया जा रहा था एज द अल्टीमेटली वे फॉर द मेजरिंग ऑफ द वैल्यू, बट इसकी हेल्प से क्या हो रहा था? अल्टीमेटली अब एक ऐसी करेंसी इकोनॉमी के अंदर आ गई थी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, कि वहां पर हम गोल्ड के बदले में यूएस डॉलर को यूज कर सकते थे।
और अगर कोई इकोनॉमी अपनी करेंसी की वैल्यू में कुछ चेंज करना चाहता था तो वो कैसे हो सकता था? इट कैन बी मेड ओनली बाय द प्रॉपर डिस्कशन विद द आईएमएफ। तो फिर ये सिस्टम जो था वो 1977 में रिमूव कर दिया गया और इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से। मीन्स द इनिशियली बिफोर वी कैन से फ्रॉम द इनिशियल टाइम पीरियड फिक्स एक्सचेंज रेट वाज देयर। और 1920 से पहले तक कौन सा सिस्टम रहा? गोल्ड सिस्टम। और 1920 से 1977 तक में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया? ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एंड आफ्टर दैट 1977 द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज adopted. So what is the difference between both of these terms? कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो कौन डिटरमाइन करता है? इट इज मेनली डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। और फ्लेक्सिबल कौन डिटरमाइन करता है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर फिक्स रेट में कुछ चेंज होता है तो मेनली जो है वो कौन करता है? इट इज मेनली प्लान्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और द आरबीआई। फ्लेक्सिबल में जो चेंजेस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होते हैं। ओके, गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज करती है तो वो किससे होगा? क्या इम्पैक्ट आएगा उसका? डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन। और अगर मार्केट फोर्सेस में कुछ चेंज आता है तो वो किस में आएगा? डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। फिक्स्ड में क्या होगा? गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर लेवल पे उसको फिक्स कर देगी एज लाइक सिचुएशन ऑफ द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बट फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं। स्पेक्यूलेशन जो है वो फिक्स्ड रेट सिस्टम में कम होता है क्योंकि जब जनरली होता है कि ये एक्सपेक्ट किया जाए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा तो जल्दी से चेंजेस आ सकते हैं। बट स्पेक्यूलेशन जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बहुत हाई होता है क्योंकि वहां पर डिमांड और सप्लाई को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट कैन बी चेंज वेरी इजिली। So this was the concept of the entirely fixed and flexible rate of system, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम भी स्टडी किए और इनके डिफरेंसेस को भी स्टडी किया।